Welcome to VLearn. This is session number 6 of wireless and mobile networking. In this session, we'll discuss about what actually is wireless, what is mobile networking. We'll discuss about GPS system. We'll discuss about mobile communication framework, and we'll discuss about IR LANs. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या। मोबाइल कंप्यूटिंग एंड वायरलेस एंड मोबाइल नेटवर्क है क्या चीज़। मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटिंग ओवर मोबाइल नेटवर्क, दैट इज़ if you are using any computing platform, computational activities can be performed through mobile channels, then it comes under mobile computing. अगर हम बात करें वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स की, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वायरलेस टेक्निक्स हैं विच वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस सेशंस, एंड इफ़ वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम then it becomes mobile computing platform. Now, if we talk about mobile computing framework, here it requires first radio based system, that is whatever the technology that you are using to communicate over wireless is either radio system, then it can be cellular communications, it can be wireless packet data network, satellite network, or it can be IR and light based mobile system. If we talk about the devices part, so mobile access devices की ज़रूरत कहाँ होती है? First of all, it is required in portable computers like your laptops and palm tops and all. Then you can use it on PDAs, smartphones and similar devices, and you can use it on palm tops, tablets and similar devices. Now, मोबाइल डेटा इंटरनेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स जो अवेलेबल हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स के लिए, there are two different standards available. There is code division multiple access and infrared data association. So there is IRDA or CDMA. If we talk about these two, CDMA is basically a multiple access technique where we basically identify the code and we provide the multiple access accordingly. IRDA के अंदर क्या होता है? We provide a data association using IR transmissions. मोबाइल कंप्यूटिंग बेस्ड आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं, दे आर बेसिकली based on the communication system that is based on mobile network. Now, there is another term called GPS, Global Positioning System. Global Positioning System is basically a method to position any object across the globe, and for this we require 24 satellites that is sent by that is controlled by America. Pentagon at America is controlling this thing, and secondly it was first created for Department of Defense, but now it is used by all kind of systems, like navigation system is using it, your transportation is using it, and we are using to find out position of any object across the globe. अगर हम GPS की बात करें तो GPS को एनहेंस करते हुए दूसरा सिस्टम आपका LBS सिस्टम बनता है, एंड इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आइडेंटिफिकेशन। जो भी आपके ऊपर के सैटेलाइट्स हैं, सबसे क्लोजेस्ट सैटेलाइट्स हैं, ये उसको आइडेंटिफाई करता है। GPS के 3 ऑर्बिट्स के अंदर सैटेलाइट्स होते हैं, 8 सैटेलाइट्स इन ईच साइड, और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो,
आपके ऊपर हमेशा 4 सैटेलाइट्स ज़रूर होते हैं, तो उनके हेल्प से आपकी लोकेशन कैलकुलेट होती है। सेकेंडली, आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हाउ द जीपीएस सिस्टम वर्क्स, देन इसमें हम जो है सिग्नल्स के कैच होने के तरीक़ों से आइडेंटिफाई करते हैं दैट वेयर द सैटेलाइट इज़ राइट नाउ एंड व्हाट वी आर रिसीविंग, मीन्स किस एंगल से हम डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ अराइवल से हमें पता चल जाता है कि हम उस सैटेलाइट से कितने डिस्टेंस पे हैं। नाउ इफ़ वी बेसिकली जस्ट मूव अहेड, तो यहाँ पे अब हम अपनी पोजीशन तो कैलकुलेट कर गए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग एल्स। So for all kind of computing purposes we require some kind of computational system, and for computational systems what we do, because mobile has a limitation that mobile के ऊपर आप बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं लगा सकते या आप उसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग सिस्टम नहीं लगा सकते, इसलिए आप हाई एंडेड प्रोसेसर तो लगा ही नहीं सकते। मेमोरी की लिमिट से आपके पास की एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा मेमोरी नहीं रख सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज computing over our traditional systems and we just communicate using our mobiles. मीन्स हम अगर सपोज कोई कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो वी जस्ट गिव इनपुट्स टू सम काइंड ऑफ कंप्यूटर located at some remote site using some applications, and that computer basically calculates whatever we are looking for. वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है या वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, वो हमें आउटपुट्स जनरेट करके दे देता है। Now the concept arises is UC technology. UC technology is basically another technique that is to identify numerical identities of any object. ये आपकी आने वाली फ्यूचर मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यूज़ किया जाएगा, और इसमें हम क्या करते हैं, लोकेशन बेस या एरिया बेस, रीजन बेस सर्चेस प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स इफ़ यू आर लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक एरिया देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक काइंड ऑफ सर्विस। यहाँ पे आपके पास बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो टास्क डायनामिज्म। Task dynamism is basically whatever the tasks you have assigned to the system, they can be executed as per the time, whenever the system has time it will get executed, or it is transferred to some other system and that will execute and provide you the result. Then we were discussing about device heterogeneity and resource constraints. हमारे पास ऐसा रूल नहीं है कि सभी के पास एक जैसा डिवाइस हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर किसी को बाउंड कर दें कि आप यही वाला मोबाइल लेंगे तो ही हम आपको सर्विस देंगे। यू हैव टू सर्व एवरीबडी। अब डिवाइस अगर डिफरेंट हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग कोड्स बदल जाते हैं। समटाइम्स some of the devices are having somewhat higher memories or somewhat higher processing speed. In some cases you will find that the processing speed is very slow, so you have to look onto that particular aspect also, and you cannot create one specific application for all kind of devices. अगर सोशल एनवायरनमेंट में कंप्यूटिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा सबसे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर यूसी टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यू कैन ईजिली कम्युनिकेट ओवर सोशल नेटवर्क, यू कैन use your data channels to communicate through different social websites and social medium.
If you look onto research challenges onto this area, the first part is semantic modeling. Semantic modeling is basically if you want to go for the computational work, the first part comes is semantic analysis. So in semantic analysis, what we do is we decompose whatever the instructions are given by the user. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई लेवल सिमेंटिक मॉडल इस्तेमाल करते हैं और जो भी हमारे पास यूज़र से इंस्ट्रक्शंस आई हैं या यूज़र से इनपुट्स आए हैं उनको हम डिकम्पोज करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं ऐसे पार्ट्स में कि कौन सा पार्ट हमको किस एंड पे कराना है, वेदर इट इज़ डन ऑन द मोबाइल डिवाइस और इट इज़ डन बाय सम काइंड ऑफ सर्वर एप्लीकेशन. जो काम अपने करना है वो तो मोबाइल डिवाइस आपको रिस्पॉन्स करके दे देता है. जहाँ पे प्रोसेस वो खुद नहीं कर सकता, इन दैट केस इट इज़ ट्रांसफरिंग द सेम थिंग टू द सर्वर and the server computes and provides you the result. Now comes your building software infrastructure. As I was talking, हम क्योंकि कंप्यूटेशनल वर्क मैक्सिमम सर्वर एंड पे कराना चाहते हैं, कुछ पार्ट उसका हमने अपने एंड पे कराया है. तो इस जगह पे होता क्या है कि कंप्यूटेशनल वर्क आपके एंड पे जितना हो सकता है वो परफॉर्म होकर के आगे का डेटा सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है. एट द सर्वर एंड ऑल्सो यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट अडेप्ट्स दैट क्लाइंट एप्लीकेशन, दैट कम्युनिकेट्स विद द क्लाइंट एप्लीकेशन एंड रेस्पॉन्स इट इन अ प्रॉपर टाइम. If we talk about development and configuration of application, here what we do is हम नॉर्मली डायनेमिक टास्क्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और करते क्या हैं कि वाइल डेवलपिंग वी जस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ सर्वर एप्लीकेशंस एंड सम पार्ट ऑफ द सेम इज क्लाइंट एप्लीकेशन. द क्लाइंट एप्लीकेशन इज हैंडेड ओवर टू द यूज़र, बट एट द सर्वर एप्लीकेशन व्हाट वी डू इज़ वी जस्ट पुट सम काइंड ऑफ अडेप्टेबिलिटी जिनके हेल्प से हम पहचान सकें कि व्हाट आर द थिंग्स एक्चुअली हैड हैपेंड. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूज़र एक्सपीरियंस को भी हम वैलिडेट कर सकते हैं इसके हेल्प से. दैट मीन्स वी कैन इफ़ेक्टिवली टेस्ट दैट व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपेंड, यूज़र का अपना एक्सपीरियंस किस तरीके का था एंड हाउ यूज़र इज़ फीलिंग बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट द प्रोडक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड. अगर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. द फर्स्ट थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ व्हाट गेटवे टेक्नोलॉजी यू वांट टू यूज़. सपोज यू आर यूजिंग CDMA technique, then you must have to ensure that your target customer is a CDMA customer, and at that time you must have to ensure that in the area where you want to sell the product, उस एरिया के अंदर CDMA प्रोवाइडर्स अच्छी गिनती में हों और उनके इन्फ्लुएंस अच्छे हों. इसी तरीके से अगर आप सपोज GSM के लिए अगर कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द GSM ऑल्सो, एंड इन दैट कंडीशन you have to take into account that sufficient GSM providers should be there in your area. इसमें हम नॉर्मली पोजीशन सेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, आई ट्रैकिंग, इस तरीके के जो एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं इनमें हम चेक करते हैं दैट वेदर द रिलेटिव डिवाइस इज़ अवेलेबल विद द यूज़र और नॉट. क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप पोजीशन सेंसिंग करना चाहते हैं यूज़र के सिस्टम में, यूज़र के डिवाइस के अंदर सपोज GPS सिस्टम नहीं है तो आप पोजीशन उसकी नहीं सेंस कर सकते. एट दैट टाइम आपका एप्लीकेशन उसके पास चलने से मना कर देता है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो. बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि यहाँ पे इसके पहले की जो टेक्नोलॉजीज़ थी उसमें मेजर पार्ट हम या तो क्लाइंट एंड पे ही करवा देते थे, तो उसमें हमको स्पेसिफिक डिवाइस रिक्वायर्ड होता था,
कि भाई हाई एंडेड मोबाइल रखोगे तो ही हमारा एप्लीकेशन यूज़ कर पाओगे। अगर हम इस सभी काम को सर्वर एंड पे करा देते थे, उस केस में हमारे पास प्रॉब्लम होती थी कि हमको केयर करना होता था कि सर्वर से जो कनेक्टिविटी आपकी है वो अच्छी रहे। Now let's move on to the LAN part. For LAN, what we require is we use normally in infrared data association for local area connections. And infrared data association is a kind of optical based system where we just try to send infrared signals to the other computer. Here light is thrown out, that's why it is very fast, and you can have 4 Mbps speed onto an infrared link. Secondly, there is one requirement that it should be point to point. That means it is for point to point communication, it is not for point to multi point or distributed communication. आप दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो उनका आमने सामने होना ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज देयर शुड नॉट बी एनी एडिशनल लाइट सोर्स और एडिशनल हीट सोर्स नियर बाय, बिकॉज इट विल रिड्यूस द क्वालिटी। IRDA बेस अगर आप LAN क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दो कंप्यूटर्स के बीच में IRDA LAN अडेप्टर लेकर के इनको आपस में जोड़ सकते हैं। And using this method, what you can get is you can get two computers connected to each other without any extra effort. IRDA की बात करें तो इसका आमने सामने होना ज़रूरी है, और आप जिन भी मशीनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को पहले वेरीफाई करती हैं that whether they are able to connect each other or not, what is the speed of the system, and एक बार स्पीड मैचिंग और सिंक्रोनाइजेशन हो गया तो it will automatically move on to their communication part. Now if you talk about designing goals, so if छोटे नेटवर्क के लिए जहाँ पे कि हमको हमेशा नेटवर्क कनेक्ट करके नहीं रखना होता, वहाँ पे हम इसको IRDA को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली मोबाइल टू PC कनेक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स विच आर अवेलेबल ऑन IRDA वो IR LAN के साथ कनेक्ट होते हैं और आपके क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटिंग को सपोर्ट करते हैं। सो योर मोबाइल कैन ईजिली गेट कनेक्टेड विद योर PC। बट अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, या क्या कहते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग करना चाहते हैं बिल्कुल मूविंग एनवायरनमेंट के अंदर, तो मूविंग एनवायरनमेंट में इससे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। IR LAN के लिए कनेक्शन के लिए तीन मेथड्स होते हैं। यू कैन हैव अ एक्सेस पॉइंट, यू कैन हैव पीयर टू पीयर कनेक्शन, और यू कैन हैव अ होस्टेड कनेक्शन। सो एक्सेस पॉइंट के अंदर क्या होता है, यू आर गिवन एक्सेस पॉइंट विद इन योर ओन साइट। वहाँ पे आप IR LAN के हेल्प से उस स्पेसिफिक जोन के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीयर टू पीयर कंप्यूटर कम्युनिकेशन में आप दो कंप्यूटर्स के बीच में विदाउट एनी थर्ड डिवाइस कम्युनिकेशन करा सकते हैं। एंड होस्टेड कम्युनिकेशन में you have to involve some service provider for the same purpose. Access point method की बात करें तो here we require one access point, that is your that is controller for your network interface card, and it will control your network interface card. आप कब और किससे कैसे कनेक्ट होंगे, that is defined by that network interface card. पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर क्या होगा, आपके दो डिवाइसेस मतलब दो डिवाइसेस के LAN कार्ड सामने सामने होंगे और उनके बीच में हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेंगे। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर हम
लैन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली इंफॉर्मेशन आपकी फ़िल्टर होकर के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचती है। और कनेक्शन से इसमें कनेक्शन सेटअप प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन होता है, बाद में कनेक्शन को एंड कर दिया जाता है। होस्टेड मॉडल के अंदर आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस परचेज करनी होती है। आपके घर तक वायर नेटवर्क आता है, लेकिन घर के अंदर जा कर के जो विद इन द होम कम्युनिकेशन है वो आप IRDA के हेल्प से या IR LAN के हेल्प से करते हैं। IR LAN के बारे में अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो here for this we basically require a device that sends an infrared signal, and in second case we basically require a sensor that receives that signal। ठीक है। सो एक सेंडर और एक रिसीवर, दो तरीके के डिवाइस हमको चाहिए होंगे, एंड फॉर दैट वी नॉर्मली यूज़ different type of light emitting diodes and different type of light receptors like PNP 8294 and PNP 83989। IR LANs के लिए जो प्रोटोकॉल्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं TinyTP प्रोटोकॉल। And TinyTP protocol is basically a protocol that helps you in communication over IRDA। इस प्रोटोकॉल के अंदर अगर हम बात करें तो जो फ्रेम साइज़ है वो आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फ्रेम साइज़ छोटा कर दिया जाता है, आप नज़दीक रहते हैं तो फ्रेम का साइज़ बड़ा रखा जाता है। और जो आपके 802.3 या 802.5 के पैकेट्स हैं, टोकन रिंग या टोकन या इथरनेट के जो पैकेट्स हैं, इंटरनली यही मूव हो रहे होते हैं, बट इन पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए हम TinyTP फ्रेम्स का यूज़ करते हैं, जो कि IRDA टू IRDA कम्युनिकेट कराते हैं। उसके आगे फिर आपके LAN वाले पैकेट्स आ जाते हैं। सो दूसरी एंड पे पहुंचने के बाद TinyTP फ्रेम्स असेंबल होते हैं और उसके बाद वो इथरनेट फ्रेम्स के फॉर्म में या टोकन रिंग फ्रेम्स के फॉर्म में ब्रेकअप हो जाते हैं, वॉट एवर द मेथड यू आर यूजिंग, एंड इन दिस वे you will be able to communicate over the IRDA network। फ्लो कंट्रोल की बात करें तो TinyTP प्रोटोकॉल का काम बस यही है कि आपके जो अपर लेयर के या इथरनेट के फ्रेम्स थे उनको छोटा करके आपके एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। अगर आपका डेटा एसोसिएशन जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस का है, मतलब इफ़ सपोज सोर्स एंड डेस्टिनेशन हैज़ अ लॉन्गर डिस्टेंस इन बिटवीन, इन दैट कंडीशन व्हाट इट विल डू इज़ इट विल पुट द पैकेट साइज टू बी वेरी स्मॉल, और पैकेट साइज स्मॉल होने की वजह से फ्लो आपका जो है वो ज़्यादा स्मूथ होता है। फ्लो आपका जो है वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस बना रहे। फॉर दिस IR LAN के अंदर हम जो है फ्लो कंट्रोल मेथड्स अप्लाई करते हैं, जिसमें कि हम डेस्टिनेशन बफर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही सोर्स एंड को डिफ़ाइन कर देते हैं। दूसरी बात, स्पीड को बार बार सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। सपोज़ ज़्यादा डिस्टेंस हो जाने की वजह से क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड कम या ज़्यादा हो गई हो। सो what we do is we again resynchronize it, and because of this method what happens is we get a similar kind of flow control in all cases। Now there is some activity for you. You have to define mobile computing framework, and secondly you have to define IR LAN protocol framework। That's all for now. Thank you।